you, sir. Okay, so the thing is like that. Myself is Dr. Ahmed Junaid. I completed my MBBS from Russia, and I completed my pediatric degree, and then after that I did my MHA and MPH. Okay, not MPH, it is PGDPH. So for the Shivam, it is not too much hard to understand this subject because it's very easy subject for him because there is a one basic subject in MBBS. Uh, for Alia, you and Abdul. Hello. Yes, sir. Okay. Alia and Abdul, you can understood it. Is this is a basic subject? It's related about the community medicines. Okay. In general, it's like you heard about the policy, like programs, policies, which is government making for benefit of the citizens. Are you know any? Are you, Abdul or Alia? You can tell. I know Shivam is know very well. It's okay for him. Alia and Abdul, you can tell me something about the community medicine if you know. I have no idea about community medicine, but yeah, I'm aware with certain common programs based upon healthcare services. Like we have Ayushman Bharat and other sort of schemes. Okay, Alia. Alia. She's not there. She lost his connection. Okay, Abdul, is you are working with background of medical, so you will understand things also. It's community medicine. So the today topic is about the health. Are you know the definition of health according to WHO? Yes, sir. Yeah, you can tell me, please. According to the WHO, health is basically physical, mental, and social well-being. Okay. Are you understood about the definition? Like you can elaborate me the definition. What with this thing, with those things, what you understood in general way, in your own language. It is a definition by WHO. Okay, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Okay, I understood. But in your own language, are you understood this definition? Yes, sir. Like we cannot say that a person is absolutely healthy just because they do not have any ailment or disease. For a person to be considered healthy, they should be physically fit as well as mentally and socially fit. As per this definition, we cannot say that any individual in this world can fit into this definition of health, because every other individual, or we can say every individual on the planet, is suffering from any kind of either physical or mental or social challenges. Okay, the thing is like that. With this definition, WHO want to explain you the thing is people is we can't say the people is healthy if he don't have any kind of disease. Okay, either he is suffering from any disease, but person should be free, should be physically fit, mentally fit, and socially fit. Physically means like handicap we understood. Okay, and so mentally in our life the mental peace is very necessary. Okay, so because people are doing a lot of wrong things if they are not their mental status is not in a sense. Okay, so here WHO want to say ki, it's not like if the person has don't have any kind of disease, that's when he is free from, he is healthy, but he must have to healthy with his physical, mental, and social well-beings. Okay, are you guys want to write the things? I think for Shivam it is not possible because he's on duty. Abdul, you want to write the things, or I can explain the things only?
Sir, we have been given books, and one of the books I have with me is also healthcare Okay. services. So, is Okay. there any need for me to write? What do you say? Okay, then no. I actually the book in the book there is a lot of things. Okay, as per my opinion, I can give you the things in the short. At least you should have remembered this for the exam. So on the basis of that, you can wrote that many things. Okay, so Mhm. if you would like, you can wrote it off. Either not, it's okay for you. It's okay for Sir, do you provide notes? notes. My notes are for your institute notes. Sir, for us, like for epidemiology and IT, we have been provided notes by our respective teachers. Hmm. So, are you going to provide us note for this subject? Yeah. Personally, I don't have any personal notes right now. I can tell you the things in a short. Okay, if you wanna, you can quote it. If you like to understood, Okay, okay. sir. Okay. Yeah, sure, sure. Like for the thing for the health, if you got a question in your question paper like that, please define that health or something related to the health. Okay, Yes, sir. uh, in for exam to get good mark, you should have to mention the, WHO definition. Okay, Yes, either sir. is a short question, either is a long question. You should have to mug up this definition and should in your at the time of paper you should have to wrote this. Okay, Yes, because sir. in short questions they are just asking define the, like for example, please define the health and its dimensions. Okay, sometimes they ask. So if the question is for 4 marks, you can wrote the definition of health according to WHO, and there is a some dimension about the health. You can wrote it 2 3 lines with that. Okay, Yes, sir. so for example, if they ask the question about the definition of the health is, you only write this: the health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. Okay, Yes, sir. are you comfortable in Hindi? Yes, sir. Yes, sir. We are comfortable. Okay. बीच-बीच में क्या है ना कि समझाने के लिए थोड़ा हिंदी ठीक रहता है। Yes, फिर sir. आप क्वेश्चंस इस तरह से एक्चुअली दे फ्रेम द क्वेश्चन लाइक दैट, डिफाइन द हेल्थ इस डायमेंशन. So in dimensions, four five things is at least 6 7 things is coming. So right now there is a philosophy about the health. So sometimes in a short question they ask, please tell me the definition and philosophy. So in the philosophy there is a 6 7 points. You can please, if you wanna, you can wrote it very easy. In according to new philosophy of health, health is a fundamental human right. First things, okay. Okay. Because everywhere, not every person is aware about that. It is a health issue is a fundamental right, fundamental of the human rights. The health is a essence of productive life. The second in philosophy, the second point is health is a essence of productive life and not result of every increasing expenditures on medical care. Health is in is in spectral. Okay. The third point is health is an integral part of development. So this line they want to say ki, if the nation or state or community want to develop good development, they must have to pay attention on the health of their populations or peoples. Okay. Yes, sir. The next point is health. Health is a central to the concept of quality of life. Yes. With this line, what they want to say, कि always if the health is good, people's quality of life will be increased. In the sense of like, if people is healthy, he can like alive long. We assume like that. The death is in hand of God, so nobody. As per assumption, like if the health of the person is good, he can live a quality of life. For example, if he's a healthy, he can work properly. He can do his all work. If he's with the health is good, he can earn more. If he's earn more, then his social life is good, his living standard is good. So with this concept they want to say like is the health is a central of concept of quality of life. In quality of life,
आप कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस एरिया में। फॉर एग्जांपल जैसे पुअर लोग हैं, पुअर इन द सेंस जो अभी आपके स्लम एरियाज में रहते हैं, तो आप देखो ना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो गलत रॉन्ग होती है ना, बिकॉज वो ऑलवेज डिजीज, कोई ना कोई डिजीज हुई रहती है, या मतलब डिजीज होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है कि जो स्लम एरियाज हैं उसमें ज्यादा है डिस्प्रेड हो जाती है, या कोई कम्युनिकेशन डिजीज हुई तो। सो with this line they want to say कि the health is essential to conserve quality of life. If health is good, then quality of your life is good. Okay. Yes, sir. Health and its maintenance, the next point is health and its maintenance is a major social investment. Okay, वही द सेम, मतलब उसी को उन्होंने दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया है कि हेल्थ एंड इस मेंटेनेंस ए मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट। जितना अच्छा आपका हेल्थ होगा उतना अच्छा आपका सोशल होगा, उसी के ठीक है। एंड हेल्थ इज आल्सो वर्ल्ड वाइड सोशल गोल। जाहिर सी बात है, सोशल गोल, वर्ल्ड वाइड सोशल गोल कहने का मतलब इतना ही है कि जो माइग्रेशन होते हैं बहुत से कंट्रीज से लोग, जैसे इंडिया में तो कम है, लेकिन फॉरेन में क्या है कि कोई जो आसपास की कंट्रीज हैं, जैसे तुम्हारा नेदरलैंड या अमेरिका में 3-4 प्लेसेस हैं, तो वहां से लोग माइग्रेट करते हैं। तो अगर जो पीपल जहां से माइग्रेट कर रहा है, अगर वो हेल्थ वाइज उसको कोई डिजीज नहीं है, वो कोई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लेकर के ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो जहां भी जाएगा सोसाइटी में उसका मतलब अगर हेल्थ अच्छा है तो फिर वो सोसाइटी और उसका अच्छी रहेगी। ठीक है। डायमेंशंस में आता है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, इसमें है फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन एंड वोकेशनल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन का क्या है कि सेल्फ असेसमेंट। फर्स्ट वन फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशंस is they want to describe in that in exam you can wrote कि physical means physically person should have be fit for the fit herself, like self assessment of overall in physical exam dimension. First point is सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ। लोगों को कम से कम अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखना होगा, उन्हें अपने आप को इवैल्यूएट करना होगा, टाइम टू टाइम उनको अपना चेकअप कराना होगा। फॉर एग्जांपल ये डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सम डिजीज जो जेनेटिक्स होती हैं, जेनेटिकल ट्रांसफर होती हैं, तो उसमें अगर जैसे डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक है किसी फैमिली में हिस्ट्री, तो उस फैमिली के लोगों को, जैसे उनके सन्स डॉटर्स को 25 इयर्स के बाद एटलीस्ट रेगुलर चेकअप में होना चाहिए, ताकि अगर उन्हें हम अर्ली डिटेक्ट कर लें उनकी डिजीज और प्रिवेंशन ले सकें, क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन दे आर प्रिवेंटिव, प्राइमरी प्रिवेंटिव। अगर वो एकाएक इमरजेंसी में लैंड नहीं होता है हमारे पास, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि आपको सेल्फ असेसमेंट ओवरऑल हेल्थ का करना होगा। Inquiry to the symptom of illness, the second point is inquiry to the symptom of illness, health and risk factor, वही मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया। और the third is inquiry into the medication, like ये उनके लिए सेकंड स्टेज के लोगों के लिए जिसका मेडिकेशन चालू हो गया। अब जिसका मेडिकेशन चालू हो गया, अगर वो हाइपरटेंशन, थायराइड या आपका डायबिटीज या और ट्यूबरकुलोसिस, किसी की भी मेडिसिन ले रहा है, they should have to self like they should have to assessment, like for अगर आपका डायबिटिक है तो उसके लिए आपको HbA1c रेगुलर कराते रहना चाहिए। with that they can know कि the medicine which they are taking is working for them or not, because people कभी कभी क्या होता है, लोगों को एक बार डिटेक्ट हो गया, उनको कोई किसी ने एक दवा लिख दी, वो उसी दवा पे चलते रहते हैं, वो ना तो उसका फॉलोअप लेते हैं, ना तो उसका क्या नाम है ये लेते हैं, क्या नाम है कि मेडिसिन जो हम खा रहे हैं उससे हमको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर एकाएक कभी वो इमरजेंसी में लें। तो जो मेडिकेशन वो ले रहे हैं उनको वो मेडिकेशन का मतलब उस डिजीज के रिकॉर्डिंग हमेशा रखनी है कि डिजीज मुझे मेडिसिन ये मेरे पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, इससे मुझे इफेक्टिव है, इससे मैं हेल्दी हूँ कि नहीं। द थर्ड इज उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपल शुड इंक्वायरी टू यूज ऑफ मेडिकल सर्विसेज, लाइक कि पेशेंट शुड भी लोगों को अवेयर होना चाहिए कि
क्या क्या मेडिकल सर्विसेज उनके आसपास हैं। ठीक है, इंडिया में तो कोई बात नहीं, लोग छोटे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, बट ये लाइन एक्चुअली में फॉरेनर्स के लिए है कि वहाँ पे क्या है कि मेडिकल सर्विसेज का जैसा घर, हर एक घर के आदमी को वहाँ का एम्बुलेंस नंबर, क्योंकि दे आर द सेंट्रलाइज्ड, तो उनको अपने एम्बुलेंस नंबर पता होना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी से कॉल करना है। और वहाँ चूंकि कंट्रीज में सेंट्रलाइज होने की वजह से उनका स्पेसिफिक, अभी आगे मैं बताऊंगा CSC PSC के बारे में, तो उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे उनकी जो एरिया का डॉक्टर है पहले उनको उसी को कांटेक्ट करना है। इट्स मतलब इंडिया इज नॉट लाइक दैट इंडिया की they can come directly to the OPD in area hospital. In foreign countries, it's not allowed. If they have some symptom, they can contact their individual doctor, which is selected for him in a separate area wise. So they should have to contact their own doctor. If the doctor recommended him that he is unable to treat with the on the basis of home basis, they refer to the higher center. So पर्सन्स को अपने आसपास की जो सर्विसेज हैं उसके डॉक्टर से उसके बारे में मालूम होना चाहिए। मेंटल डायमेंशंस में आपका आता है फर्स्ट वन, एंड देन द सेकंड हेडलाइन इज मेंटल फिजिकल डायमेंशन इज ऑलमोस्ट ओवर। एनी क्वेश्चन अबाउट द फिजिकल डायमेंशन? No, sir. Understood the thing. The third one is mental dimension. अक्षय, हेलो अक्षय, अक्षय। जी सर। अच्छा, हाँ जरा आप बताइए, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं? सर मेडिकल बैकग्राउंड। मेडिकल? यस सर। क्या किया आपने? सर रेडियोलॉजिस्ट। हैं? रेडियोलॉजिस्ट नहीं मतलब रेडियोलॉजिस्ट आप कहीं हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं? यस सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रोहाणी सेक्टर 6। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, ये पब्लिक हेल्थ के बारे में क्या पता है आपको? सर अभी तो फर्स्ट क्लास ही लिया आज। नहीं, इन जनरल आपको कुछ आइडिया है? अब्दुल, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं देखा अभी आया ना अक्षय। नहीं, मेडिकल बैकग्राउंड से आपको इसके बारे में कुछ पता है आपके प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है MHA के लिए, क्योंकि MHA ये आपको सेकंड ईयर तक लेके जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट ईयर के 4-5 पेपर तो इसी पे डिपेंडेंट, मतलब इसी से मिला जुला के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको कुछ आइडिया है तो बताइए, नहीं तो वैसे तो मैंने देखा कि अभी आप आए तो इसलिए पूछा। नहीं सर, कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, कम्युनिटी मेडिसिन कहलाती है। मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये कम्युनिटी मेडिसिन कहलाती है। इसमें ये जो जितने प्रोग्राम चलते हैं ना, ठीक है, वो जो इंडियन गवर्नमेंट की सर्विसेज जितनी भी हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे आपको, ठीक है। धीरे धीरे मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्या है। और अभी हम हेल्थ के बारे में पढ़ने कि हेल्थ है क्या चीज, लोगों को क्या हेल्थ से वो होता है, ठीक है। आप ज्वाइन कर लिए थे जब मैंने डेफिनेशन ऑफ हेल्थ का डेफिनेशन बताया था? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। डेफिनेशन हेल्थ का डेफिनेशन बताया, ठीक है, आपके पास नोट्स होगी, उसमें होगा। तो जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है। आपका छोटा क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन है, उससे आपका क्या नाम है वो आपको लिखनी है, ठीक है, क्योंकि MHA में आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। तो आप वो डेफिनेशन याद कर लेना। उसका WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली अबाउट एब्सेंस ऑफ द डिजीज, ठीक है। उसके फिर उसके आगे मैं डायमेंशन बता रहा था, उसमें फिजिकल डायमेंशन था। आई थिंक आपने फिजिकल डायमेंशन सुना होगा कि क्या है, ठीक है। आप क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी कहीं ना कहीं आप रोक के पूछ सकते हैं। ओके सर। देन डायमेंशंस में दूसरा है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन है a mentally healthy person is free from internal conflict, he is ठीक है, he is not at war with himself, like कहने का ये मतलब कि मन की शांति होनी चाहिए आदमी के अंदर, तभी वो, अगर आदमी मेंटली रिलैक्स है तो बहुत सी डिजीज, बहुत सी चीजों से बच सकता है, ठीक है। इसलिए इतना जोर मतलब इतना ज्यादा डेफिनेशन में भी इसको लाया गया है,
उसके ऊपर से एक डायमेंशन के बारे में बताया गया, क्योंकि मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी सर। ठीक है। इसमें आपको अगर आता है कि जैसे लिखने के लिए अब आपको आ गया हेल्थ का डेफिनेशन और डायमेंशन। तो डायमेंशन में फिजिकल डायमेंशन अब आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि एग्जाम में आप सब कुछ रट के नहीं लिख सकते, और जितना आप मतलब क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है। जो क्या एग्जाम में मेन क्या रटना है, आपको मेन रटना है ये क्या कहते हैं, डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन आपको आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए और डिफिनेशन। ठीक है, तो मेंटल डायमेंशन में आप अपने हिसाब से लिखिए कि पेशेंट को हमेशा मेंटली रिलीफ होना चाहिए। वो क्योंकि जितना ही मेंटल स्ट्रेस होगा फिर उसका सब कुछ अफेक्टेड हो जाएगा। फिजिकल लाइफ भी उसकी अफेक्टेड होगी, उसका वर्क अफेक्टेड होगा, फिर वर्क अगर अफेक्टेड होगा तो उसकी सोशल लाइफ अफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि भाई अगर मेंटली पीस नहीं है तो अपने काम में उसका मन नहीं लगेगा, अगर उसका काम में मन नहीं लगेगा तो फिर अर्निंग में दिक्कत होती है। आप खुद के ऊपर एक आजमा के देखो ना कि कभी कभी आपको स्ट्रेस रहता है और काम में फिर कैसा रहता है, कितना इरिटेशन रहता है, कितना आप किस तरह से बातें करते हैं, या फिर वो काम करने का में एक पीस नहीं आती, तो उससे आपका डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है जी सर। ओके। थर्ड वन है अब्दुल, यस सर। आर यू गेटिंग द थिंग्स और आई शुड हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? नो सर, आई एम ऑल ओके, हिंदी में भी समझ में आ रहा है। बस ठीक है यार। नहीं बात यह है ना, देखो पढ़ने में मेन चीज है क्या, नोट्स तो आपके पास भी है, ठीक है, एग्जाम में आपको उसी से पढ़, लेकिन अगर आपको समझ जाओगे तो आप कम से कम वहां पे एक दो बार रीड भी कर लोगे तो समझ में आएगा क्या लिखना है इसमें। क्योंकि वहां पे मेन है लिखने के लिए आपको खुद से बना के लिखना होगा, क्योंकि आप पूरा आप सोचो ना इतना पूरा थ्योरेटिकल आप कैसे याद रख सकते, कोई नहीं याद रख सकता है। ठीक है, किताब में जो लिखा है उसमें मतलब क्या है उसके, और फिर फिर उसके हिसाब से एग्जाम में लिखने में इजी होता है। दूसरा आता है सोशल डायमेंशन। अब सोशल डायमेंशन में आपको उसके सराउंडिंग थिंग्स के बारे में होता है कि कैसा उसका सोशल बिहेवियर है, या सोशल इन्वायरमेंट आसपास का कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंस करो कि एक सोचो डिफरेंस सोचो कि एक जो कॉलोनीज बनती हैं उसमें क्या होता है, और एक जो नॉर्मल घर मतलब मोहल्ले होते हैं उसमें। अब डिफरेंस दोनों में क्या होता है, आपकी सोसाइटीज अगर बनी हुई है, अब जैसे सोसाइटीज के सोसाइटी में रहोगे तो वहां पे आपको सब कुछ मिलता है, हाइजीन भी क्लीन भी रहता है, साफ सफाई वाला भी बराबर आता है आपको, वर्कआउट करने के लिए प्लेस होता है, प्लेइंग ग्राउंड, एवरीथिंग अवेलेबल होता है ना। यस सर। हाँ तो इनका इसका सोशल डायमेंशन को डिस्क्राइब करने का यहाँ पे ये मतलब है कि आप जितना हाई सोसाइटी उसमें रहते हो उतना आपको उतना फ्री फ्रॉम डिजीज होते हैं। क्योंकि जैसे अभी डेली अगर सफाई होगी, भाई फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अब मोहल्ले की तो डेली सफाई नहीं होती, मोहल्ले की नाली की डेली सफाई नहीं होती, पर जो सोसाइटीज हैं उसमें देखो नाली वगैरह कवर होके रहती है। या जब ये सीजन अभी जैसे डेंगू इसका सीजन आता है तो उसको जो पॉन्ड होते हैं या उसको कवर करके रखते हैं, या उसका पानी वगैरह चेंज करते रहते हैं स्विमिंग पूल का, ताकि डिजीज नहीं फैले। तो सोशल डायमेंशन में आपको ये मेंशन करना है कि इसलिए एक इसका फ्रेज दिया सोशल। स्पिरिचुअल डायमेंशन में आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है। थर्ड वन है इमोशनल डायमेंशन। एक्चुअली इमोशन एंड मेंटल दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में आपको कुछ ज्यादा डिफरेंसेस में लिखना नहीं है। बट फोर्थ में है फिफ्थ आपका सिक्स आपका है वोकेशनल डायमेंशन। जब वोकेशनल मतलब किसी को समझ में आ रहा है क्या, वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है, क्या समझते हो वोकेशनल से? जो भी आपके समझ में आता यू कैन, बिकॉज अगर दो टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ही थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे समझाने और आपके समझने में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन करते रहिए। सर वोकेशनल का मतलब हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, हम जो काम कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, हम्म, सर हमारा ऑक्यूपेशन जो है उससे। नहीं ऑक्यूपेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं,
वोकेशनल बोल रहा हूँ, VOCATIONL। कोई नहीं, इसमें सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो उस पर आपको फुल फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से बिहेवियरल आपने लोग को देखा होगा, कभी इनका काम इसमें लगता है, कभी काम उसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो वो उसके क्या होता है कि जैसे आदमी एक जगह 10 दिन काम किया फिर छोड़ देता है, अब फिर उसका मन उसमें नहीं लगा, ठीक है, उसने उस चीज को छोड़ दिया, तो क्या होता है कि उसका वो ना तो उसको मेंटल पीस होता है, ना तो उसको मतलब सोशल पीस होता है, ना तो इकोनॉमिक पीस होता है, ठीक। क्योंकि काम नहीं करे, 10 दिन काम करेगा तो कहाँ उसको पैसे मिलेंगे, क्या करेगा। और तो इसलिए आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको फुल अटेंशन से करना है, ठीक है। इसका जो लाइन है वो ये है कि वर्क इज फुल्ली अडॉप्ट टू द ह्यूमन गोल, कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन। वर्क ऑफन प्ले ए रोल इन द प्रमोटिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। यस सर। ठीक है। अक्षय, अक्षय, कनेक्शन, अक्षय, अक्षय, आई थिंक ही लॉस्ट कनेक्शन। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे कि अच्छा हेलो अकेले अब्दुल, हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल। अक्षय लास्ट हो गया, अक्षय, चलो कोई नहीं। अच्छा यस सर। अच्छा, सुनाई दे तो रहा है वो थोड़ा ना वो वाईफाई बंद हो गया था, इस वजह से दिक्कत हो गई थी। नहीं नहीं ठीक है, मैं अच्छा समझ, कहाँ तक आप समझे थे, क्या समझ में नहीं आया वो बताइए, फिर मैं हम नेक्स्ट सर वो स्टेप। आप बता रहे थे ना प्रोसेस। प्रोसेस नहीं, मैं आपको डायमेंशंस बता रहा था। हाँ फिजिकल सर, डायमेंशन आपको डायमेंशन। समझ में आ गया था, मेंटल डायमेंशन समझ में आ गया था। नहीं So, सर, वहीं से उसके बाद ही वाईफाई बंद हो गया था सर। अच्छा, मेंटल डायमेंशन में ये है भैया कि बेसिक कि आदमी जब तक मेंटली हेल्दी नहीं होगा तब तक वो कोई भी अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो काम नहीं सही से कर पाएगा तो फिर वो सोशलाइज नहीं हो पाएगा, अगर वो सोशलाइज नहीं हो पाएगा तो फिर उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो जी सर। इसमें 4-5 पॉइंट है कि मेंटली हेल्दी पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 1। नंबर 2, ही वेल adjusted, ठीक है। He search for his identity, he has a strong sense of self esteem, ठीक है। जी सर। एंड ही फेस अ प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली, मतलब अगर कोई दिक्कत होती है उसको तो वो खुद से उसको सॉल्व कर ले। तीसरा था सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में आपको जितनी अच्छी, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वो अगर अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, तो आपको उतना कम डिजीज होने के चांसेस होंगे। जैसे आप मोहल्ला और सोसाइटीज, जो नॉर्मल सोसाइटी, जिस सोसाइटी में क्या होता है, जब मोहल्ले में तो डेली सफाई नहीं होगी आपकी, ठीक है, पर सोसाइटीज में क्या है कि डेली सफाई होती है, डेंगू सीजन आने वाला होता है तो पूरा उसमें दवाइयां डालते हैं और पानी वगैरह जो रहता है उसको चेंज करते हैं, तो डिजीज होने के कम चांस होते हैं, ठीक है। यस सर। सोशल में, इमोशनल में वही है, ठीक है, इमोशनल में वही है जो मेंटल में था कि इमोशनल और मेंटल दोनों अटैच्ड हैं, ठीक है। जी सर। अब हम आते हैं मेन चीज पे, हमारा जो मेन है ये हो गया, मैंने रफली आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया, ठीक है। जी सर। हेल्थ के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, या हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं तो उसको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको दिखेगा नहीं, नोट्स में आपको नहीं दिखेगा, पर वहां जब वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे ही लिखेगा कि डिफाइन द हेल्थ एंड गिव द डायमेंशन एंड
प्लीज राइट द डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ। तो इसके 6-7 चीजें हैं, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है और वोकेशनल है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। जी सर। अदर्स में भी आप देखो, अदर्स में भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसमें जैसे कल्चरल हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशनल डायमेंशन हो गया, प्रिवेंटिव डायमेंशंस हो गए, कि जैसे आप क्या मतलब अच्छा खाना खाने से भी उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, प्रिवेंटेशन में मतलब अगर वो प्रिकॉशंस लेगा, बहुत ज्यादा जैसे हम लोग जंक फूड खाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जैसे जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें जंक फूड से बचना चाहिए। तो इसलिए अगर वो अच्छा खाना भी खाता है, न्यूट्रिशन अच्छा होता है तो ठीक है, वो हेल्दी रहेगा। एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन बहुत अवेयर है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज से क्या होता है, क्या चीज से क्या नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपके डायमेंशन में आते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताएं। नहीं सर, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है आपको, डिस्क्राइब द हेल्थ एंड हेल्थ केयर इन इंडिया। ठीक है, ये आपका 3-4 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जैसे हेल्थ केयर में सबसे पहली चीज, हेल्थ प्लानिंग कमिटीज इन इंडिया। कुछ पता है कौन कौन सी कोई कमेटी है इंडिया में हेल्थ प्लानिंग की? पता है कुछ? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। अब्दुल सर मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है सर, हेल्थ प्लानिंग कमेटी के बारे में। ये शॉर्ट ठीक है, इसको फिर आप आपके नोट्स में भी दिया होगा। ठीक है, आप लोग एक काम करो, नोट्स में होगा, आप सिर्फ ना इसको हेडिंग के रफ में मतलब नोट डाउन कर लो, ताकि पढ़ते वक्त आपको ध्यान रहे कि एक्चुअली में इसमें पढ़ना क्या है। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो डायरेक्टली वो पूछ लेगा कि प्लीज डिस्क्राइब ऑल हेल्थ कमिटीज इन इंडिया। ठीक है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें अलग, जैसे एक पूछ लिया हेल्थ के बारे में कि हेल्थ डिस्क्राइब करो, या और भी आगे मैं बताऊंगा कि पीएससी डिस्क्राइब करो या कुछ। तो उसमें अगर ऐसे पूछेगा कि आप बोर कमेटी के बारे में बताओ, मुर्दार कमेटी के बारे में बताओ, ठीक है, चड्डा कमेटी के बारे में बताओ, मुखर्जी कमेटी के बारे में बताओ, ठीक है, या करतार सिंह कमेटी के बारे में बताओ कि ये सब किस लिए हैं। ठीक है, जी सर। शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसे आता है, आप कमेटीज के नाम लिखते जाओ, चाहिए तो डिटेल भी लिख लो लेकिन क्या नाम है, आपको समझना होगा कि एक्चुअली में ये कमेटी किस किस चीज के लिए होती है। सबसे पहली कमेटी आपको मैं बता रहा हूँ, बोर कमेटी। ठीक है, BHORE, बोर कमेटी। ठीक है, ये बनी थी 1946 में। इस कमेटी का मेन काम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। बोर कमेटी का मेन काम ये था कि वो हेल्थ का सर्वे करे और उसका डेवलपमेंट करे। ठीक है, हेलो, यस सर। बिकॉज कमेटी से क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकंड ईयर में भी आएगा, इसलिए कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्षय जी सर। समझ में आया बोर कमेटी यस सर। बोर कमेटी किस लिए बनाई गई थी, पता है, समझ में आया? हेलो, यस सर, ये सर्वे के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ केयर डेवलपमेंट। इसमें 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट मेजर्स एंड लॉन्ग मेजर्स। ठीक है, वो Yes, sir. this short term and long term, they are must have described according to the PSC. ठीक है, what is PSC, what is CSC, मैं अभी टाइम बचेगा तो अभी दिखा दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो PSC और CSC वाले। सो शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए 1 PSC फॉर 40,000 पॉपुलेशन। ठीक है, 1 PS शॉर्ट टर्म मेजर्स जो इनको बोर कमेटी बनाएगी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको एक शॉर्ट टर्म मेजर्स में बताया गया कि 1 PSC इज फॉर 40,000 पॉपुलेशन।
ठीक है। टारगेट जो दिया गया शॉर्ट टर्म का टारगेट कि दे शुड हैव टू सर्वे फॉर 1 PSC एंड फॉर 40,000 पॉपुलेशन। ठीक है। यस सर। लॉन्ग टर्म मेजर्स उसको दिया गया कि जो टारगेट था उस वक्त कि 75 बेडेड हॉस्पिटल और 1 लाख से 20,000 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन के लिए। ठीक है। ओके सर। दूसरा आता है कि MUDA मुडलार कमेटी is the purpose of this committee, the main purpose of this committee is health survey and planning committee। ठीक है। ये इनका it is for इन कमेटी 1962 में बनी थी। इसका एम था हेल्थ का सर्वे करना और उसके हिसाब से प्लानिंग कमिटीज करना। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेल्थ और ये जो लाइन है ना ऑल इंडियन हेल्थ सर्विसेज के लिए था। ये चड्डा कमेटी आपकी आती है। ये चड्डा कमेटी दे आर आस्किंग, याद कर लो, चड्डा कमेटी जो है वो नेशनल मलेरिया जो प्रोग्राम है ना हमारा मलेरिया प्रोग्राम, क्योंकि आपको मैं आगे प्रोग्राम्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं हमारे इंडिया में। और ठीक है, अभी तो कम्युनिटी नॉर्मल कम्युनिटी बता रहा हूँ। चड्डा कमेटी इज फॉर मलेरिया प्रोग्राम। ओके जी सर। और मुखर्जी कम्युनिटी ये सबसे अच्छी वाली कम्युनिटी थी इंडिया में जिसने फैमिली प्लानिंग लाई। ठीक है। मुखर्जी कम्युनिटी इज फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है। और उसके बाद आया क्या नाम है जंगावाला कमेटी 1967 में। ये इनका कम्युनिटी इज फॉर हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। अब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं। ये ओनली फॉर हेल्थ सर्विसेज के लिए था। ठीक है। करतार सिंह कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि इट इज द कमेटी इज फॉर कमेटी ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर्स अंडर द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। बिकॉज मल्टीपर्पज वर्कर्स, एनीवन कैन टेल मी, आप लोगों से कोई बता सकता है क्या है ये, इसका मतलब क्या हुआ मल्टीपर्पज वर्कर्स का? मल्टीपर्पज सर। हेलो। यस यस सर, आर यू सेइंग मल्टीपर्पज? Kartar Singh Committee, it is also known as Committee on Multi-Purpose Workers under the Health and Family Planning। मल्टीपर्पज वर्कर्स से क्या समझते हैं आप? सर मल्टीपर्पज वर्कर्स वो हो गए जो डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्टोरल वर्कर्स होते हैं, वो जो सिर्फ एक काम नहीं करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है, ये अभी आपको और आएगा आगे। ठीक है। नहीं, इसमें एक्चुअली मल्टीपर्पज वर्कर्स आपका जो ये है ना ANM वगैरह आती है ना, ANM आशा, ठीक है, मेल हेल्थ वर्कर जो आपका PSC पे होता है, वो मलेरिया पैरासाइट और वो सब कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। एक्चुअली में दिस कमिटीज आर वेरी गुड फॉर इंडिया, बट उसको फॉलो अप में नहीं लिया तो दिक्कत होगी। ठीक है। यस सर। और फिर श्रीवास्तव कमेटी है। ये आपका मेन काम है ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन सपोर्ट ऑफ मेन पावर। ठीक है। ये जो श्रीवास्तव कमेटी, यही आपका जो इसके अंदर वही NMC या आपका जो रजिस्ट्रेशन वाले सारे आते हैं ना कि मेडिकल एजुकेशन कैसी होगी, क्या फॉर्मेट होगा, या कौन बी फार्मा वाला कौन था? आप ही है ना B.Com वाले? हेलो अब्दुल सर, मैं बायोटेक से हूँ, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। नहीं, इसमें मैं क्या कि मेडिकल एजुकेशन श्रीवास्तव कमेटी वाज परपोज फॉर हाउ द मेडिकल एजुकेशन शुड हैव टू परफॉर्म इन इंडिया। ठीक है। एंड ठीक है सर। इतना। अब आते हैं मेन चीज पे कि हेल्थ केयर एंड सिस्टम। अच्छा, अब इंडिया में कितने तरह के हेल्थ केयर सिस्टम है? सर बेसिकली तो सर 3 लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। ओके, वेरी नाइस।
प्राइमरी में क्या आता है प्राइमरी में? अच्छा, एक काम कर लो, ये मैं एक डिफरेंट टेबल लिखा रहा हूँ, इसको प्लीज नोट कर लो। ये एग्जाम में मतलब अगर आपको आता है ना लिख, क्योंकि ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? दो टेबल बनाना, एक तरफ लिखना हेल्थ केयर कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी तरफ लिखो हेल्थ सिस्टम कंपोनेंट। Okay, sir. So just a minute. अक्षय है, लॉस्ट हो गया? यस सर। वंशिका, नहीं विशाखा, सॉरी विशाखा, विशाखा। आप मेडिकल ग्राउंड से या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से? मेडिकल ग्राउंड से हो सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेडिकल बैकग्राउंड से आपने क्या कर रखा है? एमबीबीएस कर रखा है सर। गुड, तो फिर तो आपको कम्युनिटी मेडिसिन से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स गुड। वर्किंग भी है कहीं पे? करेंटली नहीं हो सर। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक एक्चुअली में इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक का जो लेक्चर है वो हेल्थ केयर के बारे में था, ठीक है? सो अभी वही हेल्थ की डिफिनेशंस एंड देन उसके जो डायमेंशंस वगैरह हैं, एक्चुअली में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें समझा दूं ताकि आप पहले वहां पे एग्जाम में लिख सके, क्योंकि रट के तो लिखना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो हेल्थ केयर का आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको हेल्थ की जो WHO की डिफिनेशन है वो नोट डाउन करनी है, ठीक है? और फिर उसके जो डायमेंशंस वगैरह हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ठीक है, 5-6 पॉइंट जो है वो नोट डाउन करने हैं। बाकी क्वेश्चंस आपका कम्युनिटी, सारी कमेटी तो आपको पता होंगी, ठीक है? जो सारी ये अभी हम नेक्स्ट लेवल पे आए हैं कि हेल्थ केयर इन इंडिया अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है? कि प्लानिंग कमेटी कौन कौन सी थी। तो क्या आता है इन शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि रोट अबाउट द बोर कमेटी, रोट अबाउट द मुद्दार कमेटी, रोट अबाउट दिस मुखर्जी कमेटी, एनी कमेटी दे कैन आस्क फॉर 4 मार्क्स इन, मतलब जो भी डिवीजन है, जो ABCD 4-5 आते हैं ना शॉर्ट में लिखने के लिए क्वेश्चंस, उसमें आपको ये डिफिनेशन पूछते हैं या उसका क्या मेन फंक्शन था वो पूछते हैं, तो वो तो आप तो लिख ले जाओगे, ठीक है? जी सर। और फिर अभी मैं एक्चुअली में एक टेबल बनवा रहा था कि ये टेबल सिर्फ नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? आप नोट्स कौन सी फॉलो कर रहे हो अपनी, मतलब MBBS की नोट फॉलो कर रहे हो या फिर जो यहाँ से प्रोवाइड हुई है? सर मैंने एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है, ये मैंने रिसेंटली एडमिशन करवाया था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आप देखिए बेसिक क्या है, MHA के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में PSM के सब्जेक्ट से रिलेटेड 5-6 पेपर हैं, ठीक है? एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके सारे ही पेपर PSM से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो आप चाहे अपनी नोट्स फॉलो कर लो या आपने पढ़ा किससे, पार्क से? जी सर, पार्क से ही पढ़ा था। ठीक है, पार्क से देखो पढ़ा है तो फिर वेरी गुड। आप बस वहां पे आपको जाके एक बार क्वेश्चंस रीड करना है, ठीक है? रीड करके फिर अपने हिसाब से उसको समझ के लिख देना, ठीक है? एक टेबल बना लो ये हेल्थ केयर एंड सिस्टम का, हेल्थ केयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम कंपोनेंट, ठीक है? ये दो थोड़ा सा अलग एक टेबल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? सर जस्ट गिव मी 1 मिनट सर। इट्स ओके, इट्स ओके। यस सर। जस्ट दो कॉलम बनाना है, ठीक है? फर्स्ट में लिखना है हेल्थ केयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द हेल्थ सिस्टम कंपोनेंट, क्योंकि आप जितना एग्जाम में जितना ही ऐसा टेबल वाइज और रो वाइज या शॉर्ट में लिखोगे ना, मतलब फोकस जितना अच्छा आपका चीजों पे रहेगा उतना क्योंकि MHA में आपको शॉर्ट में और अच्छा लिख, मतलब ज्यादा MPH जो दूसरे मतलब PGDPH या डिप्लोमा हेल्थ पब्लिक हेल्थ वाला डिप्लोमा या
दूसरा MPH है, उसमें एक्चुअली में बहुत लेंदी आंसर्स लिखने पड़ते हैं जबरदस्ती के। उसमें में आप शॉर्ट में भी लिखोगे और इंफॉर्मेटिव है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इन हेल्थ केयर का अक्षय एंड अब्दुल, आई एम अवेलेबल हो कि लॉस्ट हो गया? यस सर। ठीक है, लिखो फर्स्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट लिखो यस सर। एप्रो, APPRO, APPRO, PRI, जी, ATENESS, appropriateness। यस सर। दूसरा उसी में दूसरा लिखना है Appropriateness, comprehensiveness, COM PRE HEN जी सर। SI VNESS। अब्दुल, अक्षय लिख लिया या फिर से रिपीट करना है? लिख लिया सर। ओके। तीसरा है एडिक्वेंसी, ADE QUEANCY, एडिक्वेंसी। यस सर। अवेलेबिलिटी, सेम पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हो गया ना, अवेलेबिलिटी। नंबर 5 एसेसिबिलिटी, अक्षय अब्दुल अगर स्पेलिंग चाहिए होगी तो बता देना, ऐसा नहीं है, ठीक है, डोंट मतलब शर्माना नहीं, कोई बात नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज एफोर्डेबिलिटी। सर ये सब कुछ हेल्थ केयर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर है। अभी हेल्थ केयर कैरेक्टरिस्टिक्स का ही बता रहा हूँ मैं, अभी रिपीट करता हूँ। द लास्ट वन इज फेसिबिलिटी, ठीक है। सेवन हो गए ना? यस सर। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉलम जो हेल्थ सिस्टम कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो कॉन्सेप्ट, उसके आगे ब्रैकेट में लिखो हेल्थ एंड डिजीज, मतलब आपको हेल्थ, फिर लिख लो, फिर डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट आइडियाज में ब्रैकेट में लिखो इक्विटी, कवरेज, इफेक्टिवनेस, इम्पैक्ट। थर्ड पॉइंट लिखना ऑब्जेक्ट्स, उसके ब्रैकेट में लिखो हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ प्रोग्राम्स। Then next one, persons, provider and consumers. हो गया? ओके। एक्चुअली मैं आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब जिनसिंग कि आपको हेल्थ के कैरेक्टर और सिस्टम के चीजें मालूम होनी चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें एप्रोप्रिएट चीजें एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या कहते हैं इसको, अफोर्डेबल क्या उस पर है, कॉम्प्रिहेंसिव
और सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, सब कोई को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और सबसे मेन कंपोनेंट है अफोर्डेबिलिटी, मतलब हेल्थ केयर जो है वो सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, और फैसिलिटी मतलब हर चीज की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो आपका एक अच्छा हेल्थ केयर का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। हेल्थ केयर सिस्टम कंपोनेंट में कॉन्सेप्ट मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट किस चीज के ऊपर, सिस्टम, अगर हेल्थ केयर सिस्टम आपको सिस्टम अगर बनाना है हेल्थ सिस्टम, तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्या है कि आपको डिजीज की हेल्थ पर्सन या डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना आया, तो अगर हमको पता ही नहीं कि हमको काम किस पे करना है, तो हम सिस्टम कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैसे कोरोना में हमने क्या किया, सिस्टम एक नया सिस्टम ही तो जनरेट किया कि जो पुराने से लेके प्लेग से कि हमने क्वारंटीन किया लोगों को, क्या नाम है, होम क्वारंटीन, फिर हॉस्पिटल क्वारंटीन, फिर लॉकडाउन, ताकि स्प्रेड होने जैसे डिजीज जो स्प्रेड होती है उसको कैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने उसका कॉन्सेप्ट बनाया। ठीक है, आइडियाज। अब आइडियाज में सबसे पहले कि अगर कोई चीज आप कर रहे हो, कोई चीज नया सिस्टम आप बना रहे हो, तो उसका आपको सोचना होगा ना कि हम अगर ये सिस्टम बना रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, उसमें ये भी आएगा कि आपका इकोनॉमिकली भी आएगा कि आप इतना खर्चा करके बना रहे हो तो उसका आखिरकार क्या इम्पैक्ट आएगा, कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज सिस्टम बनाने से पहले ये दो चीजें हमको, तीसरा चीज है ऑब्जेक्ट, हेल्थ सेंटर एंड हेल्थ प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट्स आपको होनी, क्योंकि अगर बिना ऑब्जेक्ट के तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी फॉर, जैसे जो न्यू डिजीज का सर्चिंग होता है उसके लिए हमें क्या वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं ना, सिर्फ वॉलंटियर्स एंड वॉलंटियर सेंटर्स। आपको तो पता, ठीक है, आपको तो पता, वो अक्षय, अक्षय, अब्दुल, यस सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये क्या हेल्थ सिस्टम बनाने का जो कॉन्सेप्ट, आइडियाज, ऑब्जेक्ट एंड पर्संस का। यस सर, समझ में आया। ठीक है, ओके। अक्षय, ये लॉस्ट हो गया बंदा, कोई नहीं। अच्छा अब्दुल, आप बता रहे थे ना कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में कौन कौन से हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना? यस सर। अच्छा, डिफरेंस बता सकते हैं तीनों में, दोनों में? सर इन तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में? हम्म सर इसके अंदर जो प्राइमरी है, सबसे पहला तो ये तो सर हम लोग के बिल्कुल ही जो बेसिक लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होती हैं ये वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि सर नर्सिंग वगैरह हो गया, और फर्स्ट एड देना है, यानी कि जो स्पेशलिटी नहीं चाहिए जिसके अंदर, वो सारी चीजें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। और जो उससे एडवांस लेवल होता है वो होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी की भी जो होता है वो भी बेसिकली मल्टी स्पेशलिटी होता है सेकेंडरी। उसके अंदर भी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। और सर जो उससे एडवांस होता है वो होता है हमारा टेरिशरी, वो सुपर स्पेशलिटी होता है। तो ये है सर। डॉक्टर साहब आप बताएंगे? यस सर, प्राइमरी हेल्थ केयर में हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलते हैं, जैसे कि एमबीबीएस लेवल के लोग होते हैं जनरली उसमें, और एमडी लेवल में स्पेशलाइज्ड होता है, एमडी लेवल के डॉक्टर्स होते हैं उसमें। और टर्सरी होगा जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपको एडवांस सर्जरीज होती है, और उसके बाद आता है क्वार्टरनरी, उसमें तो एडवांस लेवल के भी स्पेशलाइज्ड वो होता है। अच्छा ठीक है, अक्षय सुन रहे हैं? ये नहीं, शायद से लॉस्ट हो गया। अच्छा यस सर। आ गए वापस? सर वो किसी की कॉल आ गई थी इमरजेंसी हॉस्पिटल से। अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हॉस्पिटल के बारे में क्या मालूम है, बताना। सर प्राइमरी, पता है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर, टर्शियरी हेल्थ केयर, क्या डिफरेंस है, कुछ पता है? सर चैरिटी तो जिसका सर ट्रस्ट चलाती है। चैरिटी नहीं पूछ रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, थर्ड, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे ही सिंपल वे में बताओ। कुछ पता है प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, नहीं सेंटर के सर, बारे इसका कोई आइडिया नहीं। में? अच्छा, पीएससी, सीएससी? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं।
प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे इसका डिफिनेशन वाइज अगर जाना है, इसके 4 हॉल मार्क्स हैं, ठीक है। मतलब 4 मेन चीजें होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर में। फर्स्ट क्या है? अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। जी सर। डेफिनेशन सबने सभी, और उसमें आपको क्वेश्चन में सीधा एक ही क्वेश्चन आएगा, जो शॉर्ट में क्वेश्चन आता है उसमें यही आता है कि आप प्लीज डिस्क्राइब द प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो नोट्स लेके, मतलब यहाँ की नोट्स लेके बैठे हो अक्षय तुम, जो तुम्हारे पास यहाँ से अवेलेबल हुई हैं? सर फोन के अंदर है वो। क्यों, फिजिकल नहीं दिया है क्या? सर वो फिजिकल घर पे रखे हैं, मैं ना मेरे भाई जो है ना उनके ठीक है, डिलीवरी है भाभी के, कोई बात मैं नहीं। हॉस्पिटल में बैठ के क्लास ले रहा हूँ। हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइमरी हेल्थ के बारे में और भी चीजें वहाँ पे आपको डिस्क्राइब की गई है, तो उसको आप बेसिकली पढ़ लीजिएगा, हाँ ठीक एक है। बार चेक कर लूंगा मैं। हाँ, और इसके हॉलमार्क्स 4 होते हैं: अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन, क्योंकि इसी 4 पॉइंट पे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ये आपको उसमें बताना है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, प्राइमरी हेल्थ केयर के फंक्शन क्या क्या है? सबसे है नंबर 1 है मेडिकल केयर, मतलब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सर्जिकल नहीं है, ध्यान रखना। मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल केयर, ठीक है ना जी सर। डॉक्टर? सिर्फ मेडिकल केयर है ना प्राइमरी में? यस सर। और सेकंड है उसका जो फैमिली प्लानिंग सारे होते हैं, ठीक है, वो भी प्राइमरी केयर ही करता है, ठीक है। और भी जी क्या सर। क्या है, और भी क्या क्या है, ध्यान से सुन लो। सेफ वाटर सप्लाई का भी काम आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का ही है, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग को मतलब इन जनरल नॉलेज में आप देखोगे, कहोगे ऐसे कैसे होता है, बट सेफ वाटर सप्लाई एंड ये क्या नाम है, ये भी काम जो आपका प्राइमरी सेंटर का ही है, ठीक है। जी। लोकल अगर कोई एंडेमिक डिजीज हो गई है, ठीक है, उसका भी प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल जो है वो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ही करता है, ठीक है। जी सर। और अगर एजुकेशन देनी है किसी हेल्थ के बारे में या हेल्थ रिकॉर्ड के से, वो भी आपका प्राइमरी हेल्थ केयर ही करता है। जैसे एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे अगर कोई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है, तो स्कीम चलती है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब ऐसे उल्टा मैं समझा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो प्राइमरी लेवल वाला डॉक्टर्स को बुला के बताई जाती है, फिर प्राइमरी लेवल वाले डॉक्टर्स वो विलेजेस में जाके कैंप बताते लगाता है। हैं। कैंप लगाना है या जाके बताना है, या उनको क्या नाम है, बुला के बताना है, या जब उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं दवा के लिए तब बताना है, ठीक है। जी सर। और प्राइमरी हेल्थ का दूसरा और भी काम है न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम। अपने यहाँ न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं ना? यस सर। वो भी है, ठीक है। और दूसरा, ये कोई तो भी बीच में बोल रहा था, इसको मिसमर्ज मत करना, रेफरल्स, ये रेफरल सर्विसेज यहीं से होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इससे पहले बता रहा था आपको कि सेंट्रल कंट्रीज में पेशेंट डायरेक्टली इमरजेंसी में लैंड नहीं होता है, ठीक है। उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन द सेंस कि उसको अपने प्राइमरी सेंटर में ही जाना है। वही कॉन्सेप्ट हम इंडिया में भी लेके आए थे, बट इंडिया में फॉलो नहीं होता है। फॉलो होना, मतलब सही सर्विस के लिए फॉलो होना चाहिए कि जिस एरिया का आदमी अगर बीमार हुआ है उसको अपने पहले प्राइमरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्राइमरी सेंटर में। अगर वो वहां से रिफर करते हैं, ठीक है, तो वो सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं ना कि मर्ज हो जाता है सब कुछ आपका, डाइट पेशेंट बुखार के साथ भी यहीं पे आ जाएगा, कैजुअलिटी में आ जाएगा, हाथ पैर टूटेगा तो भी कैजुअलिटी में आ जाएगा। ट्रामा सेंटर बना फिर भी वो ट्रामा में नहीं जाएगा, जनरल हॉस्पिटल में आ जाता है, ठीक है। बट फॉरेन का सेटअप इस तरह से है कि अगर उसको चोट, मतलब फ्रैक्चर ये है, तो वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, क्योंकि उनका सेंटर ही वैसा बना होता है, इन्फेक्शन डिपार्टमेंट का अलग है। आप इंडियन पास आउट है ना डॉक्टर साहब? नहीं सर, मैंने नेपाल से करा है। अच्छा, नहीं, अच्छा, नेपाल का तो मुझे सिस्टम नहीं मालूम, बट इंडिया जैसा ही है, इंडिया जैसा ही है, सेम। अच्छा, इंडिया रहता है नहीं है जो फॉलो होता है। बाहर, हाँ वो समझ गए। बाहर कंट्रीज में क्या है कि डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन द सेंस उनका ईयरली अगर हेल्थ चेकअप होता है, तो भी उनका ईयरली हेल्थ चेकअप होता है, और उनका जो प्राइमरी डॉक्टर होता है ना, उसको बाय बर्थ से लेकर टिल जब तक आप हैं, ठीक है,
तब तक उसको पता हो, जो प्राइमरी डॉक्टर के पास रिकॉर्ड होता है, पूरा एक रिकॉर्ड बुक होती है। आपको मतलब इवन 80 एज में भी आपको पता चल जाएगा कि आपके फर्स्ट 6, जब आपको आप 6 मंथ ओल्ड थे तब आपको क्या डिजीज हुई थी, क्या आपको कितने दिन बुखार रहा था, वो रिकॉर्ड में सब कुछ रहता है। तो कहने का सेंस ये है कि इसीलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर को रिफरल सेंटर कहा गया, क्योंकि पहले पेशेंट अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास जाएगा। अगर डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को कहीं हायर सेंटर में रिफर करना है तो वो रिफर करता है। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि प्राइमरी सेंटर इज ए रेफरल सेंटर। ठीक है, रेफरल सर्विस है उसके पास। ओके, और जो प्राइमरी सेंटर में सिर्फ बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज होती हैं, ज्यादा ज्यादा चीजें चेक नहीं होती हैं आपका, मतलब बहुत नॉर्मल चीजें चेक होती हैं। स्टाफ कितने कितने होने चाहिए, किसी को पता है प्राइमरी सेंटर में? क्योंकि ये आपका आएगा और ये आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी टेबल पे बनवा देता हूँ, बट अगर किसी को कुछ आइडिया है तो बताओ। भूल गई सर। भूल गया, अच्छा ठीक है, टेबल बनाओ। क्योंकि ये मैं टेबल इसलिए आपको बनवा दे रहा हूँ, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, थियोरेटिकल तो आपको नोट्स में, क्योंकि आई एम मतलब मैं खुद अपने कुछ पर्सनल नोट्स से भी चीजें लिखवा रहा हूँ आपको। तो जहां मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो बेसिक चीजें तो आपको सब मिल जाएंगी, क्या फंक्शन है, क्या इसका डिफिनेशन है। ठीक है, या इसके जैसे 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हॉलमार्क इसलिए बता दिया कि एग्जाम में याद रहे कि ये लिखना है। एक टेबल बनाइए और स्टाफ के उसमें लिखिए, पहले कॉलम में स्टाफ लिखिए। लिखा, स्टाफ लिखा। उसके बाद अच्छा, पीएससी में 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए टाइप बी। उसके आगे लिख के एक लाइन खींच लीजिए, उसके आगे लिखे टाइप ए एंड टाइप बी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन भी आता है कभी कभी कि टाइप ए में और टाइप बी में क्या डिफरेंस। ठीक है, ओके। मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस, फर्स्ट लिखे, फर्स्ट स्टाफ में फर्स्ट में लिखे मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस। ठीक है, टाइप ए में भी आपको एक मेडिकल ऑफिसर चल जाएगा। ठीक है, टाइप बी में भी एक मेडिकल ऑफिसर होगा। ठीक है, एमबीबीएस का। दूसरा है मेडिकल ऑफिसर आयुष। आयुष का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बताइए, कोई और बताए, अक्षय या वो डॉक्टर अब्दुल, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? Sir, A for Ayurveda, AY for Ayurveda, U for Unani, S for Siddha, H for homeopathy. ठीक है, ठीक है, तो आयुष मेडिकल ऑफिसर भी दोनों में एक एक चाहिए हमें। ठीक है, टाइप ए में भी एक चलेगा, टाइप बी में भी एक। ठीक है, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एक एक। फार्मासिस्ट एक एक। फार्मासिस्ट आयुष का दोनों में एक एक चाहिए। फार्मासिस्ट आयुष का अलग। सबसे पहले नंबर 1 मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस, नंबर 2 मेडिकल ऑफिसर आयुष, नंबर 3 में अकाउंटेंट। ठीक है, अभी सब में एक एक चाहिए। ठीक है, दोनों उसमें फार्मासिस्ट एक एक। ठीक है, एंड देन फार्मासिस्ट आयुष एक एक, 1-1। ठीक है,
नर्स मिडवाइफ मतलब स्टाफ नर्स। टाइप ए में 3 चाहिए, टाइप बी में 4 चाहिए, 3 and 4। यहाँ से थोड़ा यही डिफरेंसेस यहीं पे आएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। स्टाफ नर्स में डिफरेंस है, स्टाफ नर्स टाइप 1 में 3 चाहिए और टाइप बी में 4 चाहिए, ठीक है। हेल्थ वर्कर फीमेल टाइप ए टाइप बी दोनों में एक एक चाहिए। हेल्थ असिस्टेंट मेल दोनों में एक एक चाहिए। हेल्थ एजुकेटर दोनों में एक एक चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1 ठीक है। और ये कोल्ड चेन एंड वैक्सीनेशन लॉजिस्टिक्स के लिए एक एक असिस्टेंट चाहिए। मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर के लिए 2 चाहिए। सैनिटरी वर्क कम वॉचमैन, ठीक है। टाइप ए में 1 चाहिए, टाइप 2 में 2 चाहिए। ठीक है। एक टेबल और बनाना। यहाँ पे मैं आपको इस टेबल से मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगा कि कितने पॉपुलेशन के लिए सीएससी चाहिए, कितने पॉपुलेशन के लिए पीएससी चाहिए, कितने पॉपुलेशन के लिए सब सेंटर्स चाहिए, ठीक है। और उसमें कितने स्टाफ होने चाहिए, टोटल कितना बेड होने चाहिए, ठीक है। और कितने मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने गांव को एक सीएससी या एक सब सेंटर या पीएससी आपको कवर करता है, ठीक है। तो ये भी कॉलम वाइज आएगा। फर्स्ट आप लिखिए एक बीच ऊपर वाली लाइन में लिखिए सब सेंटर। पहले एक थोड़ा सा लाइन छोड़ दीजिएगा, उसमें आपको लिखना लेवल ऑफ केयर, पॉपुलेशन नॉर्म, प्लेन और मतलब हिली एरिया के लिए अलग अलग है, देन स्टाफ, देन मेंटेनेंस, ठीक है। ये इस राइट लेफ्ट साइड में आपको लिखना है। पहले आप लेफ्ट साइड में पहले आप लिखिए लेवल ऑफ केयर फर्स्ट पॉइंट। हेलो हेलो, Yes, sir. आई एम ऑडिबल? आई लॉस्ट माय कनेक्शन। आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. You are audible. विशाखा, यस सर। ऑडिबल है मैं? यस सर। ठीक है। टेबल वाइज एक टेबल और बनाना है कि कितने मतलब कितने ये जो है ना, आप प्राइमरी हेल्थ केयर कितने पॉपुलेशन के लिए चाहिए, सेकेंडरी कितने के लिए चाहिए, टर्शियरी कितने के लिए चाहिए, सॉरी पीएससी कितने के लिए चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे लेफ्ट साइड में सबसे पहले लिखो आप ऊपर एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में लिखो क्या नाम है, लेवल ऑफ केयर। फर्स्ट लेवल ऑफ केयर, उसके जस्ट सामने लिखो सब सेंटर, लाइन खींच के फिर लिखो प्राइमरी सेंटर और ब्रैकेट में पीएससी, ठीक है। फिर एक लाइन खींच के लिखो सीएससी। ये तीनों में पता होना चाहिए आपको, और ये आपको क्वेश्चन में
लिखना है, ताकि आपको एग्जाम में मार्क्स ठीक दे, क्योंकि ताकि उसको समझ में आए कि आपने मतलब आपकी नॉलेज तो है उसके बारे में। ठीक है सर आप ये नोट्स ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं? दोस्त, मैं ये आपको अपनी नोट्स और बुक से मैं देख के बता रहा हूँ। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं ग्रुप में अपलोड, ऐसा है मैं इसका वो करके ना जीरोक्स करके मैं अपलोड करवा दूंगा, मैं सीमा को दे दूंगा, वो अपलोड कर देगी। ठीक है, यस सर, सर वैसे रहेगा तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इसको एक पीडीएफ बनवा के इसका जेरोक्स करके पीडीएफ बनवा के, जो मेन मेन चीज एक्चुअली में ये आपका जब एग्जाम आएगा ना, मैं रिवाइज कर मतलब ऑफलाइन अगर आप लोग आ पाएंगे उस दिन, तो एक दिन ऑफलाइन भी क्लास लेनी है ना, क्लास खत्म होने के बाद एग्जाम से पहले जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो की फैक्टर्स चीजें हैं ना, कि जो एटलीस्ट आपको लिख के एग्जाम पास हो जाना है या अच्छे मार्क्स लाने, वो सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके सर लिए आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो, यस सर। एक तो मैं इसको जीरोक्स करा के सीमा को दे दूंगा, वो ग्रुप में आपको अपलोड कर देगी। ठीक है, ओके सर, ओके। सेकेंडरी जब एग्जाम से पहले एक बार आपको ऑफलाइन के लिए आना होगा। ठीक है, उस वक्त भी मैं आपको जीरोक्स करके नोट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि टेबल से क्या होता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, बात ये है। यस सर। ये हो गया, तो उसमें प्राइमरी के आगे आपने लिखा ना प्राइमरी सब सेंटर पीएससी एंड सीएससी। ठीक है, यस सर। उसके नीचे आना, जहाँ लेवल ऑफ केयर है उसके नीचे लिखो पॉपुलेशन नॉर्म। ठीक है, पॉपुलेशन नॉर्म के नीचे लिखना प्लेन, उसके नीचे लिखना हिली, हिली एरिया और ट्राइबल एरिया, क्योंकि दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, वन सब सेंटर में प्राइमरी के प्लेन के सामने काम दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूं मैं, एक ग्रुप में फोटो तो चला जाएगा ना? यस सर। मैं ट्राई करता हूँ यार, फोटो चला जाए फोटो का। देखना सही आ रहा है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, हेल्थ के कितना, कौन से पॉपुलेशन के लिए क्या क्या कितने कितने वो चाहिए। ठीक है, यस सर। आ गया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, डॉक्टर साहब आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, ये जो स्टाफिंग वाला है जो मैंने दिखाया था, वो मैं आपको शेयर कर, पर इसमें ना 2-3 मतलब मिक्स करके दिया हुआ है, इसेंशियल डिस्क्राइब, वो आपको इतना जरूरत नहीं है। मैंने जिस तरह से दिखाया उसको उस तरह से टेबल में भेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और मैं हेलो, आई एम ऑडिबल ना? आवाज आ रही है? ठीक है, सब सेंटर का भी मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसको भी नोट डाउन कर लेना, सब सेंटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि सब सेंटर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, वो थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया, उसको प्राइमरी से पहले बताना था। मैं टेबल वाइज उसकी डिफिनेशन पूरा भेज दे रहा हूँ, नहीं समझ और डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। ठीक है, हेलो, समझ में आया टेबल या कुछ उसमें डिस्क्राइब करना है?
तो ये टेबल में का सब पॉइंट्स नोट करना है ना? हाँ, एक्चुअली में देखिए, मैं जो फर्स्ट जो टेबल मैंने भेजा, जिस वो वाला खोलिए, हेल्थ केयर एंड सिस्टम, ठीक है। तो मैंने इसलिए शेयर किया आपको कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, शॉर्ट में या लॉन्ग में, ठीक है, तो आप अगर ये टेबल बना देंगे, दैट्स मीन कि आपको चीजें क्लियर हैं कि हेल्थ केयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर आया, आप क्या क्या लिख सकते हो, 2 ही 4 लाइन लिख पाओगे प्राइमरी हेल्थ केयर में, ठीक है, कि इसका बेसिक काम क्या है। जैसे जो प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल, उसके ये जो 4 हॉलमार्क इसके हैं कि ये अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए एंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसके फंक्शन लिख दो, जो मैंने बताया कि मेडिकल केयर देता है, आपके सारे प्रोग्राम्स करता है, सेफ्टी वाटर सैनिटाइजेशन का काम करता है, ठीक है, करेक्शन एजुकेशन कंसर्न, हेल्थ कंसर्न देना, न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम का काम है, रेफरल सर्विस का, ट्रेनिंग हेल्थ हेल्थ केयर का काम भी प्राइमरी सेंटर में होता है। फिर आप उसमें एज पर क्वेश्चन, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टाफ का हेडिंग डाल के कि एक कितना मतलब एक पीएससी 2 टाइप के ए बी, किसमें कितने, ये तो बहुत ज्यादा एक ही जगह डिफरेंस है, ठीक है। तो आप अगर ये चीज लिख दोगे तो दैट मीन एग्जामिनर को अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपने कुछ पढ़ाई की है। क्योंकि क्या होता है जब लेंथी क्वेश्चन आता है ना, जब ये 7 मार्क्स में अगर 2 मार्क्स का आया तो कोई बात नहीं, 4 लाइन इसमें, फिर वो तो सिर्फ आपको प्राइमरी हेल्थ की डिफिनेशन 4 हॉलमार्क उसके ये लिख के छोड़ देना है, क्योंकि उसमें आपको फिर उतने मार्क्स का होता है वो। अगर 4 मार्क्स का है तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना। तो स्टाफिंग वगैरह लिखने से अच्छा, रो वाइज लिखने से अच्छा है कि इसमें एक एमबीबीएस चाहिए, इसमें एक आयुष चाहिए, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर चाहिए रहता है, फार्मासिस्ट, आप एक टेबल बना दिए, सब कुछ सामने दिख गया, तो एग्जाम थोड़ा इम्प्रेशन एक पेपर में अच्छा हो जाता है, ठीक है। या अब दूसरी बात, जैसे आपको प्राइमरी का है, सब सेंटर आए, प्राइमरी आए या सीएससी के बारे में आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, आप ये जो मैंने आपको अभी लिखा है कि कितने नॉर्म्स के लिए, जैसे ये लास्ट टेबल समझा रहा था आपको कि पॉपुलेशन नॉर्म के लिए, ठीक है, प्लेन एरिया और उसमें टेबल देखिए आप लोग, ठीक है, प्लेन और हिली एरिया में अलग अलग है, ठीक है। तो सब सेंटर में आपने लिख दिया 5000 3000, ये बहुत ज्यादा रटने वाली चीज नहीं है, 10-10 का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि आपने कुछ स्टडी किया, आपको भी डिफरेंशिएशन ये समझ में आना चाहिए कि एक कहाँ पे कितनी चीज की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप ये लिख दोगे तो उसमें सब कुछ कवर हो गया कि कितने क्या 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 जरूरत होती है, क्या किस चीज के लिए होता है, ठीक है। मेंटेनेंस देखो, उसमें जैसे एक मेंटेनेंस का सब सेंटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बाकी दोनों स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करना है, ब्रेक लेना है या ऑफ करना है? कंटिन्यू कर। कंटिन्यू। Okay. Just give me break for 5 minutes. Today I will finish the CS secondary level. Okay. तो कोर्स थोड़ा खत्म हो जाएगा। और अभी तो मैं मतलब जो जितने भी टेबल्स हैं वो आपको शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। जस्ट गिव मी 5 मिनट, क्योंकि मेरी ये कंटिन्यू सेकंड क्लास है ना, 1.5 घंटे से पहले, उससे पहले भी क्लास हुई है, ठीक है। Okay, sir. 5 minutes, not more than 5 minutes. What time? Okay. After 5 minutes, I will start. ओके, सॉरी, एक चीज छूट गई थी बीच में, सब सेंटर्स क्वेश्चन आता है ना शॉर्ट में लिखने के लिए, सब सेंटर्स के बारे में, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो सब सेंटर्स में मेन चीज मेन क्या है, उसमें सब सेंटर्स में आपके सब कुछ होता है, ठीक है, एवरीथिंग बी डन, ठीक है, एक्सेप्ट डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। टाइप इसका टाइप 2 टाइप है, टाइप ए टाइप बी सब सेंटर है, ठीक है। इसमें सब सेंटर टाइप ए में आपको फैसिलिटीज सारी होती हैं, सिर्फ डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है।
और सब सेंटर टाइप बी में डिलीवरी होती है। देयर इज अ मेजर डिफरेंस, मेन डिफरेंस, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. Yes. तो शॉर्ट में एक डेफिनेशन आती है लिखने के लिए आपको कि प्लीज डिस्क्राइब द सब सेंटर्स, अबाउट द सब सेंटर। तो सब सेंटर में कुछ नहीं है, सिर्फ दो टाइप के हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। इन टाइप ए ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल एक्सेप्ट डिलीवरी फैसिलिटी, ठीक है। डिलीवरी कंडक्ट नहीं हो सकती। और टाइप बी में डिलीवरी कंडक्ट होगी। वो एक टेबल भेजा ना मैंने आपको, टाइप बी टाइप का सब सेंटर का, देखिए उसमें। Yes, sir. हाँ, वो आपको टेबल बना के बस छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि ये सब छोटे छोटे डेफिनेशंस आते हैं और इससे मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। अभी सेकंड हमने प्राइमरी पढ़ लिया, सब सेंटर हो गए, प्राइमरी हो गया, एंड देन नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ओके। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या क्या चीजें होती है, कुछ बता सकते हो? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर एक ही होता है ना? सेकेंडरी हेल्थ सेंटर भी बोलते हैं। उसमें हेल्थ केयर और हेल्थ एजुकेशन दोनों होता है। एजुकेशन तो उसमें नहीं आएगा आपको, आता है, हेल्थ केयर एजुकेशन भी आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस आपको कुछ नहीं करना है। प्राइमरी से सेकेंडरी में सबसे मेन चीज आप सेकेंडरी में याद रखो कि ये फर्स्ट तो ये रेफरल सेंटर है, ठीक है। और एक कम्युनिटी सेंटर वन सीएससी इज वर्किंग फॉर 4 पीएचसी, ठीक है। मतलब एक सीएससी जो है वो आपका 4 सीएससी को कवर करती है। जस्ट अज्यूम कि एक कोई मतलब एक आपके यहाँ एरिया में सीएससी है, ठीक है, कम्युनिटी सेंटर है, जो कि वो आपके 4 प्राइमरी सेंटर्स को कवर करेगी। जैसे जो काम सारे प्राइमरी सेंटर में होते हैं वो सेकेंडरी होंगे, यहाँ पे आपका सर्जरी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जो इसमें, ठीक है। इसमें जो है नंबर एक बात तो आपका स्टाफिंग का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आप इसमें सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स थे आपके, ठीक है, आयुष मेडिकल ऑफिसर था, डाटा ये सब थे। बट कम्युनिटी सेंटर में क्या क्या होता है आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। जैसे एक तो कम्युनिटी सेंटर में आपको सबसे मेन चीज मेडिकल सुपरिटेंडेंट होना चाहिए या मेडिकल ऑफिसर एक होना चाहिए, एक होता है, ठीक है। either MO either medical superintendent, एमओ अदर एमएस, ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि बहुत से जगह एमओ को एमएस बना देते हैं, बट दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एक होना चाहिए, फिजिशियन एक होना चाहिए, सर्जन एक होना चाहिए, ठीक है। ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट एक होनी चाहिए, पीडियाट्रिशियन एक होना चाहिए, एनेस्थीसिया कंपल्सरी है, क्योंकि अगर एनेस्थीसिया नहीं हुआ तो आपकी सर्जरीज परफॉर्मेंस नहीं होंगी, ठीक है। सेकेंडरी सीएससी में आपको डेंटल सर्जन मतलब डेंटिस्ट भी होना चाहिए। डेंटल सर्जन से यहाँ मतलब डेंटिस्ट या क्योंकि एमएस डेंटोलॉजिस्ट तो बहुत कम मिलते हैं, तो उन्होंने बोला कि एक डेंटल सर्जन होना चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जनरल ड्यूटी ऑफिसर जिसको बोलते हैं, ठीक है, या रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर 2 होने चाहिए, ठीक है। आयुष का 1 होना चाहिए, और कम्युनिटी सेंटर में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कंपल्सरी है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट एक होना चाहिए। टोटल स्टाफ सीएससी में 46 to 52 होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ सीएससी में 46 से 52 है, ठीक है। और बेड नंबर ऑफ बेड 30 है, जो आपको टेबल में दिया होगा, ठीक है। बेडिंग नहीं दिया होगा, अच्छा। नंबर ऑफ बेड 30 यस, 30।
ठीक है। Yes, sir. एक डिफिनेशन आती है, मैं 2 मिनट होल्ड करना, बता रहा हूँ आपको। इसका इसी उसमें आपको एक क्वेश्चन आता है, इसका क्या नाम है, PQLI एंड DHI में एक बार इसका डिफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता है सीधा। जब तक मैं खोज रहा था। अच्छा, और पूछिए, क्या मतलब आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें MHA में? और कोई सब्जेक्ट का क्लास हुआ है आपका? मेरा तो ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा, आपने अभी रिसेंट ज्वाइन किया। आपका? सर हम लोग का IT के क्लास कंप्लीट हो गया, IT का सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है और एपिडेमियोलॉजी चल रहा है अभी। अच्छा, एपिडेमियो में क्या चल रहा है? सॉरी सर। एपिडेमियो में क्या, एपिडेमियो में क्या पढ़ा रहे हैं? मैम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा? मेरा सर पढ़ा रहे हैं, वो रिसर्च मॉडल्स पढ़ा रहे हैं अभी। एक डेफिनेशन लिखना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, HDI। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज HDI एंड व्हाट इज PQLI। तो डेफिनेशन लिखना है HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI वैल्यू रेंज इज 0 to +1, ठीक है। इसका एक टेबल में भी आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख लेना, क्योंकि वो उसमें वही लिखना ही है, सिर्फ अगर डेफिनेशन आती है। लिखिए HDI इज मेजर्ड इन 0 to 1+, ठीक है। यस सर। एंड इसका मेन चीज है HDI इज ए कंपोजिट इंडेक्स HDI is a composite index comprising of 3 dimensions.
Number 1 knowledge, number 2 income, number 3 longevity या एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका क्या इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्या है एक्चुअली में। ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इससे हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा जो ये जो पॉवर्टी लाइन और ये सब पता करते हैं ना कि कितना गरीबी है, कितना लोगों को इनकम कितनी है, ठीक है। इसमें उसके लिए यूज होता है। तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट उसकी नॉलेज मतलब एजुकेशन। जैसे फैमिली कितनी एजुकेटेड, जितनी हायर एजुकेटेड फैमिली होगी, ठीक है, एजुकेशन अगर हायर लेवल का होगा तो इनकम भी उसकी हायर होगी, ठीक है। और जितनी उसकी इनकम ठीक ठाक होगी उतना उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, ठीक है। या दूसरा, उसके पास अगर पैसे होंगे तो वो पर्सन अपना हेल्थ का अच्छा ख्याल रख सकता है, इसलिए वो उतना लंबा एक एक्सपेक्टेशन, एवरेज एक्सपेक्टेशन लंबा मतलब जी सकता है, ठीक है। तो इनका ये मेन 3 चीजें हैं। डिफिनेशन आती है इसकी, व्हाट इज एसडीआई, उसमें लिखना है एसडीआई इज अ कंपोजिट ऑफ इंडेक्स ऑफ 3 थिंग्स, 3 डायमेंशन या 3 कुछ भी लिख सकते हो, नॉलेज, इनकम एंड लॉन्गेविटी, ठीक है। सर ये वाली फोटो थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा हिल गया। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ बेटर। अच्छा, इसमें टेबल में लास्ट में आते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो 3 डायमेंशन दिए हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वो क्या नाम है, वो याद रखना आपको। 3 चीज समझ में आई, इसका क्या मतलब, किस चीज क्या मेजर करते हैं इसमें एसडीआई में हम? क्वालिटी ऑफ लाइफ with the help of 3 things, knowledge, income and longevity, ठीक है। डायमेंशन इसके हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेशन एट बर्थ, ठीक है, मतलब 0 आपकी कैसी है वो। और एजुकेशन में इंजीनियरिंग मींस ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितना साल स्कूलिंग है, वही जैसे इससे हम निकालते हैं कि जो ड्रॉप आउट कितने हो गए, ठीक है, फिर फैमिली में लोग आगे कितना नहीं पढ़ पाया। तो इससे हम अपने पूरा ऑल ओवर नेशंस का हेल्थ इंडिकेटर मेजर कर सकते हैं। कितने लोग 10 से 12 साल 0 से 5 साल में आता है ना न्यूज में कि इस स्टेट की इतनी ड्रॉप आउट लिस्ट है कि 0 to 5 ईयर इतना लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप आउट लिस्ट। तो इसी उससे निकालते हैं, इसी इंडिकेटर से निकालते हैं, ठीक है। अभी देखना फोटो अभी ठीक आई? यस सर। इसमें इसका ये फार्मूला जो नीचे लिखा है वो भी नोट डाउन करना है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन इंडेक्स, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू किस चीज का? इसमें बहुत अगर आप जाएंगे तो क्या होता है कि वैल्यू कौन सी वैल्यू, कैलकुलेशन वाली वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। इसमें जब नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है ना, वैल्यू लेते हैं कि
कितने एक्चुअल, जैसे हमने 8 साल का लिया, ठीक है, कितने साल तक स्कूलिंग हुई है, ठीक है। जैसे हमको रेंज निकालना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 0 to 8 ईयर्स के कितने बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअल वैल्यू लेंगे कि हम कितने टोटल हैं ड्रॉप आउट हैं, ठीक है, माइनस उसका मिनिमम निकालेंगे, वो वैल्यू निकालनी पड़ती है उससे, क्या नाम है आपका, बायोमेट्रिक से, ठीक है। वो आपको इतना एसेंशियल नहीं है, बट ये फार्मूला डिफिनेशन में लिखना जरूरी है, ठीक है। ओके। दूसरा आपका आता है PQLI, ठीक है। PQLI का आपका फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। हाँ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये भी 3 चीज पर डिपेंड है। नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर एज, ठीक है, वहां पे 0 थी, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और दूसरा इसमें है इन्फेंट मोर्टेलिटी, IMR, इसमें IMR का यूज करते हैं, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और थर्ड पॉइंट है लिटरेसी रेट। दोनों का कंपैरिजन का एक मैं वो भेज रहा हूँ, टेबल भेज रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये लिखने को आता है कि PQL मतलब आप SDI और PQL के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए। आप अगर ये टेबल भी बना देते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, सारे शॉर्ट क्वेश्चन। मैं एक्चुअली में आपको कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, पढ़ने के लिए तो PCM बहुत मतलब ये बहुत लॉन्ग चीज है, तो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपके निकल जाएं। आई एम ट्राइंग टू टीच इन दैट वे, क्योंकि एनी हाउ एग्जाम में जाके मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आप बाकी ये उसके हिसाब से इसमें प्रैक्टिस में तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। डॉक्टर वंशी, विशाखा नाम है ना आपको, वंशी का? Yes, sir. अच्छा, आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है? विजिबल। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए कोई। विजिबल डिजीज और जो मतलब जो विजिबल होते हैं और जो छिपे हुए होते हैं, अनडायग्नोज्ड केसेस। अनडायग्नोसिस केसेस, ठीक है। इसके बारे में भी आपको शॉर्ट में लिखने के लिए आता है। अब्दुल, हेलो अब्दुल। यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। सर नहीं आएगा तो मैं पूछूंगा, अभी तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आते हैं आपको लिखने के लिए, ठीक है, 4 मार्क्स में, इसलिए मैंने इसको अभी आपको रिवाइज कर। एक्चुअली में मैं तो उनसे पेपर मांगा था, क्योंकि पेपर से पढ़ाने में थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि पेपर वाइज सॉल्व करोगे तो आपको मेन चीज मिल जाएगी पढ़ने के लिए। चलो, आइसबर्ग फिनोमेना के बारे में, आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज। एक्चुअली में इसमें
आइसबर्ग फिनोमेना डिजीज में मेन चीज क्या है, हिडन केसेस के बारे में था। जैसे जो केसेस तो आपके डिटरमाइंड हो जाते हैं, फिजिशियन देख लेता है सिम्टोमेटिक डिजीज के साथ, ठीक है, और कुछ वो नहीं देख पाता है जो प्री सिम्टोमेटिक डिजीज होते हैं, ठीक है, जो बिना आपके इन्वेस्टिगेशन के आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम के टाइम मिस ना हो। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा था कि अच्छा इसको आप मैं ना इसको नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिटेल में लिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे नोट्स में लग रहा है। याद रखना है नेक्स्ट टाइम आइसबर्ग फिनोमेना आपको पढ़ाना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, मैं उसे लिख लेता हूँ अपने नोट्स में, मैं इसको थोड़ा सा समझा के पढ़ाता हूँ, क्योंकि इस पे भी आपको 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और क्या है आपके उसमें क्वेश्चन पेपर है क्या किसी के पास? सर क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है गूगल ड्राइव का, वो ग्रुप में लगा हुआ है स्टेटस पे। ठीक है, अभी आज तो बेसिक जो हमारा था, अगली बार ना हम इसी से रिलेटेड सारे वो पढ़ेंगे प्रोग्राम्स, ठीक है। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा आइसबर्ग फिनोमेना के बारे में, ठीक है, जो है सारा, और एक क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका आता है इसी से रिलेटेड क्या नाम है सारे प्रोग्राम्स के बारे में। कौन कौन से प्रोग्राम इंडिया में चलते हैं अब तक? कौन कौन से प्रोग्राम इंडिया में चलते हैं सर? हेल्थ केयर से रिलेटेड? हाँ, हेल्थ केयर से रिलेटेड सर, एक तो आयुष्मान भारत है, एक नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल पॉपुलेशन मिशन है, और सर इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम है सर, उतना याद नहीं है अभी तो। मेजर तुमने छोड़ ही दिया, ये मेजर आपका सबसे मेन चीज है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, दूसरा ये बाल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है, ये सब मेजर, वो जो आप बता रहे हैं वो प्रोग्राम में ही आता है, बट वो दूसरे टाइप के प्रोग्राम में आता है, ठीक है। ये जो इंडिया में जो ज्यादा करके प्रोग्राम्स चलते हैं, जो डिजीज को एलिमिनेट करना है हेल्थ सिस्टम से, ठीक है, जैसे अभी वो क्या नाम है पल्स पोलियो प्रोग्राम चला था ना, एलिमिनेट हो गई ना डिजीज। यस सर। ऐसे ही कैटरेक्ट का प्रोग्राम है, आपका टीबी का प्रोग्राम है, तो हमें अभी इंडिया से टीबी को एलिमिनेट करना है, कैटरेक्ट खत्म करना है, ठीक है, और जो नई नई चैलेंजेस हैं, कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, प्लेग आपका खत्म ही हो गया, चिकनगुनिया आपका खत्म हो गया, वेक्टर बॉर्न डिजीज का प्रोग्राम चलता है, ठीक है, ये आपका क्या नाम है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये जो आपका ये सब आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड जो प्रोग्राम सारे हैं, आज हमने कमेटी पढ़ ली, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ को पढ़ लिया, ठीक है, कि बेसिक हेल्थ है क्या, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसके बेसिक वर्क है, ठीक है, क्या उसकी फिलॉसफी है, क्या उसके फिनोमेनस है, ठीक है।
अभी क्वेश्चन अगर आएगा तो लिख ले जाओगे ना, बेसिक्स अगर बाई चांस आपने पढ़ा नहीं है, अगर क्वेश्चन आ गया, रिवाइज करना आप भूल गए, तो एटलीस्ट मेरा क्लास लेने का पर्पस यही है कि आप इतना कैरी करके जाओ कि एग्जाम में आपको कुछ तो याद आ जाए कि अच्छा अच्छा ये बता रहे थे, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज नहीं, थ्योरेटिकल एग्जाम है, ठीक है, इसमें आप सब कुछ लिख सकते हो, कहीं का कहीं भी जोड़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बस उसका बेसिक रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। डॉक्टर साहब यस सर। समझ गए, यस ठीक है। तो बेसिक यही है कि आपको मैं कोशिश, हो सकता है कि मतलब आई डोंट कि मेरे पढ़ाने में आपको कुछ कमी रह गई हो, बट बेसिक ट्राई मैं यही कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग में, क्योंकि देखिए मैं अपना एग्जाम्पल रहा हूँ, हमने भी जब क्लास प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत पढ़ ली, ठीक है, एमबीबीएस में पढ़ ली, एग्जाम के टाइम पढ़ ली, बट जब थियरी लिखने, क्योंकि बेसिकली हमने एमसीक्यूज के लिए पढ़ा था, ठीक है, अब जब थियरी आप लिखने बैठते हो तो फिर आपको बहुत कुछ लॉन्ग उसमें लेकिन बहुत सी चीजें क्लास अटेंड की थी हमने, क्लास अटेंड करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं, बहुत से लोग जैसे मुझे भी बहुत वो था कि यार चलो पीएसएम है हो जाएगा, बट जब क्लास अटेंड की तब समझ में आया कि थियरी के हिसाब से किस तरह पढ़ना है। तो मैसेज सिर्फ ये कैरी करके जाओ कि आपको मेरा सिर्फ मेन बताने का मकसद ये होता है, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में एटलीस्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसमें लिख ले लो, क्योंकि पूरी थियरी याद करना तो पॉसिबल नहीं है, सारी चीजें कोरिलेशन करके ही लिखनी है, हेडिंग डाल के, ठीक है, जितना आता है अंदर आप उतना सब मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद का क्या प्रोग्राम है डॉक्टर विशाखा आपका? एमएचए करने के बाद एडमिन में जाना है? यस सर। मैं छोटा सा अपना कुछ खोलना चाहती हूँ, कंसल्टेंसी, तो पैरामेडिकल टाइप का होता है ना। आपका क्या है अब्दुल? सर मुझे तो क्वालिटी में जाना है। हाँ यार तुम तो क्वालिटी में कर रहे हो ना तुम एनएपीएस में? यस। नहीं अच्छी है, देखो एमएचए करने के बाद आपके पास ऑप्शन बहुत ओपन हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग, कुछ लोगों को लगता है, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए जाने के लिए। यस। हो जाते हैं तुम्हारा तो ठीक है, क्वालिटी में कोई जा सकता है, कोई एडमिन में जा सकता है, कोई जैसे अभी ये आप तो पोस्ट एमबीबीएस तो आप अच्छे उस पे एडीएम एसडीएम मेडिकल स्टूडेंट तक जा सकते हो, वो भी एक अच्छा रूट है, सिर्फ आप एक जगह पर्टिकुलर भी अपने आप को वो कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी में क्वालिटी का तो काफी वास्ट है, बहुत लंबा डिपार्टमेंट, बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा। ऑपरेशन मैनेजर भी इसमें काफी, जैसे अगर आपको एक ही फील्ड में एक ही जगह काम करना तो ऑपरेशन मैनेजर के रूप में भी काम कर सकते हैं, जैसे ओटी का, पर सबसे ज्यादा मजा आईसीयू वाले में है, आईसीयू ऑपरेशन मैनेजर, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए तो नहीं होगा, बट डॉक्टर साहब आपके लिए बोल रहा हूँ कि इससे बहुत ज्यादा आपको एडीएम इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, अगर एक जगह रखना चाहते हैं आईसीयू, मतलब पेशेंट भी देखना है और अपने को एडमिन से भी जोड़ना है, तो इसका आईसीयू का ऑपरेशन मैनेजर होता है ना, यस सर, वो पोस्ट अच्छी होती है, क्योंकि फिर उसमें क्या है ना, आप रहते हैं कि वहाँ पे पेशेंट भी देख लेते हो और आपका क्या नाम है ये भी मेंटेन हो जाता है। सर आप पेशेंट भी देखते हैं, पेशेंट से भी इंटरेक्शन बना रहे और ऊपर एडमिन भी देख सके। सर आप पेशेंट्स भी देखते हो? हाँ यार मैं तो जॉब करता हूँ। अच्छा। मैं आईसीयू में जॉब करता हूँ, प्लस मैं अभी एडमिन में मुझे जाना है, बट थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ एक्सपीरियंस का, अभी मेरा एमएससी खत्म हुआ तो 1 ही साल हुआ है ना, तो वैसे भी मैंने काम, मुझे जाना है तो मैं इसमें जाऊंगा सीधा एडमिन, मतलब एमएस और एएमएस के। तो सर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो किस हॉस्पिटल में? नहीं मैं तो यार जॉब कर रहा हूँ, हाँ जॉब कर रहा हूँ मैं, एक तो मैं आरजी स्टोर में करता हूँ एज ए सीनियर यूरोलॉजिस्ट, वो क्या नाम है रजिस्ट्रार,
प्लस में एक आयुष्मान हॉस्पिटल है, उसमें वो क्या नाम है, आईसीयू में काम। ओके सर। ठीक है, एंड यार टीचिंग में इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट आई ट्राई माय बेस्ट। तो अगर, क्योंकि अगर जनरल वे में थोड़ा सा चीजें पढ़ाई जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि मैं एग्जाम में वही क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से लिख पाया जो लेक्चर सुना था, क्योंकि एग्जाम के टाइम इतना अंडर प्रेशराइज होता है कि आप पूरी बुक पढ़ के नहीं जा सकते। ठीक है, और दूसरा, अगर एग्जाम के टाइम में आपको मतलब ट्राई करना कि वो लास्ट क्लास अटेंड करने आ जाना, उसमें मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि सारे पेपर का, ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के तो सारे, जो कि प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ही है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे है, तो आपको मैं वो बता दूंगा कहाँ से क्या मतलब क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से क्या लिखना है। ओके सर। ओके सर आपने भी इसी इंस्टीट्यूट से किया था एमएचए? हाँ भाई, मेरा दोनों ही इंस्टीट्यूट से है, मतलब पीजीडीपीएच और एमएचए दोनों। ओके ओके। जबकि मेरा मतलब डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स में, बट मैं इंटरेस्टेड लिया नहीं, मुझे एक्चुअली आईसीयू बहुत पसंद है, मैं आईसीयू में इसलिए मैं ज्यादा करके आईसीयू में। सर जो एग्जाम्स होते हैं इस इंस्टीट्यूट के थ्रू यूनिवर्सिटी के, तो हाँ। कैसे उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है? देखो भाई, सबसे मेन चीज, कॉपी करने को नहीं मिलेगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन बात बता रहा हूँ। आपको जो भी लिखना है, ठीक है, आपको जो भी लिखना है आपको खुद से लिखना है, ठीक है, इसीलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाऊं, ताकि एग्जाम में आप कुछ, और दूसरा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ लिखोगे तो एग्जाम 70 मार्क्स के अबव से निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल जो है वो स्कूल वाले खुद कराते हैं। 3 मार्क्स का वो है, 30 मार्क्स का ये होता है ना आपका इंटरनल, 70 मार्क्स का एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इंटरनल में आपको 28 से 30 के बीच में वो दे देते हैं इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है, मतलब ये मेरा सब खुद कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 25 से 30 के बीच में मिल जाए। तो आपका तो 25 मार्क्स ही हो गया, ठीक है, बाकी आपके 70 मार्क्स में आपको कितने लाने हैं, मतलब 50% में तो पास नहीं होना है, एटलीस्ट 60 मैनेजमेंट में एटलीस्ट 60 से अबव जाना है, ठीक है। तो 70 में 40 मार्क्स के हिसाब से तो आपको पेपर लिखना ही होगा, ठीक है। और पेपर लिखने का सबसे वही मेन वही है कि आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है तो भी उसको बना के लिखना है। जैसे मैंने आपको समझाया कि हेल्थ के बारे में इतना क्यों डिफिनेशन, वो चार्ट वगैरह मैंने पीएससी सीएससी की क्यों दी, क्योंकि वो आप लिखते लिखते कहीं भी ऐड कर सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि अपने हिसाब से लिखना होता है, कोई एकदम पर्टिकुलर बुक के हिसाब से। ये उस तरह का थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है डॉक्टर साहब, ठीक है, मेडिकल वाला, ये नॉर्मल मतलब इसका एग्जाम है। तो आप मिक्सअप मतलब आराम से 3-4, और जरूरी नहीं कि आपको, अच्छा एमपीएच वालों को मैंने बोला है क्योंकि उनको कंपलसरी है 7 पेज का आंसर लिखना। एमएचए में ऐसा नहीं है, एमएचए में अगर आप लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के साथ 3 से 4 पेज भी लिखते हैं तो भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो जो एमपीएच वाले उसमें कंपलसरी है 7 पेज का आंसर लॉन्ग क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मैक्सिमम 1 पेज, ठीक है, क्योंकि लोग छोड़ के लिखते हैं, आधा कॉलम इधर आधा कॉलम उधर, वो जैसे हम हाई स्कूल इंटर में लिखते थे, एक तरफ लाइन खींचे और 1-1.5 पेज में क्वेश्चंस का मैक्सिमम लॉन्ग, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन का शॉर्ट पड़ जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो थोड़ा सब में लिखना है, छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस छोड़ने नहीं चाहिए, चाहे आप 4 लाइन या 5 लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, वो आप लिखिए, लेकिन क्या नाम है, क्वेश्चंस के आंसर है, क्योंकि वो वैसे ही मार्किंग होती है जैसे हमारी हाई स्कूल इंटर में होती थी। मतलब आप लोग तो अभी मतलब कौन से बोर्ड से पास आउट है आपको? सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई हो, यूपी हो, कोई सा भी बोर्ड हो, जैसे बोर्ड में मार्किंग होती है ना, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स कैसे लिखते हैं हम लोग, सेम स्कूलिंग आपका पुराना स्कूल इसमें रिवाइज होगा, ठीक है। अभी तक क्या होता है, बीच में हम लोग फिर अभी डॉक्टर साहब में तो हम लोगों को कंपटीशन करना होता है तो हम लोग एमसीक्यूज पे चले जाते हैं, फिर हम लोग की थियरी बहुत ज्यादा पिछड़ जाती है, मतलब भूल जाते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता ना हमें, पॉइंट टू पॉइंट चीजें उसकी आदत पड़ जाती है ना डॉक्टर साहब।
है डॉक्टर विशाखा? यस सर, पूरा एमसीक्यू फोकस्ड होता है हमारा। वही बट थियरी में आप थोड़ा थोड़ा राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, इस आप वर्किंग है दोनों लोग? अच्छा दोनों लोग वर्किंग है ना? ये नहीं, कितने लोग बैच में हैं आपके बैच में? अब हमारे बैच में क्या बोल रहे थे, कितने लोग? वर्किंग कितने लोग हैं? काम करते हैं कितने लोग काम करते हैं? मतलब बहुत सारे तो पीजी करने चले गए हैं, मैक्सिमम वर्किंग ही है सर। नहीं नहीं, आपके पर्सनल बैच नहीं में, ये जो आपका एमएचए वाला बैच है इसमें कितने लोग वर्किंग है, कुछ पता है सर इसमें आपको? सभी लोग वर्किंग नहीं हैं, सर, सभी हम लोग। लोग तो ये अभी मेरे को तो ये भी नहीं पता है कितने लोग हैं बैच में। सर सभी लोग वर्किंग हैं, हम लोग टोटल 5 हैं। अभी अच्छा, विशाखा, डॉक्टर विशाखा आ गई हैं तो 6 हैं। अच्छा नहीं एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं संडे को क्लास ना लूं, किसी और दिन कभी संडे को कभी ड्यूटी आ गई तो आप लोग कंफर्टेबल होगा क्या, या नाइट में 8-9 बजे के आसपास? सर रात को चाहिए, अगर आप वीकडे में क्लासेस ले रहे हैं तो एट नाइट इट वुड बी बेटर। हाँ यस मुझे कोई दिक्कत नहीं है नाइट में क्लास लेने में, ठीक है? यस सर। मुझे ना वीकेंड नहीं, ऐसा देखिए वैसे तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से उन्होंने वीकेंड पे कर रखा है, बट मैं ये कह रहा हूँ जैसे वीकेंड पे मैं फ्री नहीं हूँ, हफ्ते में एक दिन करनी है, या जैसे 2 घंटे की लगातार क्लास करता है तो मैं हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे की भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है? तो कभी कभी क्या ड्यूटी मेरी थोड़ी सी अटकेगी, इसलिए पूछ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है सर। और आप लोग से डिस्कस कर, मैं वैसे बोलूंगा उसको। हाँ, हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास होने से पहले। हाँ अगर आप लोग कंफर्टेबल है ना तो ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए कि अगर सुटेबल बैठता है तो आप लोग इसमें भी कर सकते हो, क्या नाम है, वीक डेज में भी कर सकते हो, मेरे साथ मुझे भी दिक्कत है, क्योंकि मेरा क्या है कि रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी आती है। अब आज तो चलो मैं फ्री था, पिछले संडे में मैं फ्री था, अब शायद से नेक्स्ट संडे हो सकता है ड्यूटी हो तो मैं सैटरडे ले लूँ या मंडे ले लूँ, ऐसा है, ठीक है? और अगर इवनिंग में आप लोग कंफर्टेबल हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नाइट में तो कभी भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है? जिस दिन आईसीयू की ड्यूटी नहीं होगी आप बता देना, हम लोग को इन्फॉर्म कर देना। मैं तो उनको बोल रखा हूँ, बेसिकली उनका क्या कहना है कि मतलब बच्चे काम करते हैं तो फ्री नहीं रहते हैं, तो उस पर मैं बोल रहा था अगर आप लोगों को क्लास कोई लेनी है कि नहीं, सबसे हमें जैसे अभी 2-4 लोग ऐड नहीं हो पाए, ठीक है? तो अगर उनको ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल इवनिंग में टाइम है, नाइट में 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए, ठीक है, तो मेरी जिस दिन आईसीयू में ड्यूटी नहीं है तो मैं आराम से नाइट में भी ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं मेरे लिए कि मुझे वीकेंड पे ही क्लास लेनी है, ठीक है? या मेरा कोई ऐसा हैट्रिक शेड्यूल है, क्योंकि मेरी जैसे रोस्टर में ड्यूटी नहीं है तो मैं कल भी फ्री रहूँ, परसों भी फ्री रहूँ, ठीक है? तो आपको बात कर लेना, अगर इवनिंग में चाहिए कर, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, कैन आई लीव? यस सर, थैंक यू सर। हैव अ नाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।